मैं अभी ये नहीं देख रही है कि ये नियर फ्यूचर में ये दोनों कम्युनिटी को एक साथ ला के इसको सोल्व करेंगे क्योंकि ये 2 महीने के अंदर सरकार ने इतना सुनिश्चित किया ये दोनों कम्युनिटी कितना दूर जा सकते हैं उतना दूर जाए, ये सुनिश्चित किया है। लेकिन इनका गेम प्लान क्या है मैम, आपको क्या लगता है? मुझे ये लग रहा है क्योंकि हम छत्तीसगढ़ में भी देख रहे हैं, बाकी जगह में भी ये देख रहे हैं कि जो मिनरल रिच और रिच जो फॉरेस्ट लैंड everywhere ease of doing business what the government is doing we have seen. So to ease of doing business and bringing the corporate there in the hills, they want to remove these people, that's how without any notice, without any alternate arrangement for their housing, they simply demolished 30 to 40 houses in the hills that all belongs to the Kuki community. So that is why we are the hidden agenda, 2 agenda what we are understanding. One is of course bringing these the corporates. Number 2 is of a communal in the sense that fanatic extremist ideology को revive करने का जो what is that I will tell you the 2 names. So even we are told that even CM is part of that. So yeah, so what we are seeing at a sort of a same DNA of RSS and these fanatics. The point is that even it is not only the case of Northeast. Even if it is something happens in Delhi, how many media comes to cover? So the entire 99.9% of medias are Bikawa media head, and we have for their own existence they have to follow the instructions of the government. And very few those who have come here, they have the not only concerns about the Northeast, but they have a commitment to the people of this country and the constitution of this country. Ma'am, what can the people of Delhi do? What the people of India for that matter? No, one is that you see, one is that this discussion and debate of what is happening in Manipur should be brought into in a wider area. Everywhere one should speak, and what is happening inside nobody knows, but all this killing and that photos, this and that is shown everywhere. So this is one, that discussion and debate. It is Manipur is a very strategic state for India. If Manipur is in trouble, that means Kerala is in trouble. If Manipur is in trouble, then that means Gujarat also is in trouble. That is because it is it borders with the other countries, and you see lot of things are said. The drug cartels and the weapons and all these things illegally smuggled into our country through that route. So if that weapon will not remain or drugs will not remain only in Manipur, it can travel to Kerala, it can travel to Gujarat, it can travel to any other place. So that makes those states unsafe. That is what. So it is in many ways it is a very strategic state. So that is why I am saying if Manipur is not peaceful, Manipur is not safe, then rest of the country is also not safe. That is how they are also equally important for this country. मैं निशा सिद्धू हूँ, भारतीय महिला फेडरेशन के नेशनल सेक्रेटरी। हम लोग 28 को मणिपुर में गए थे और जाते ही हमने अपना विजिट स्टार्ट किया। हम सबसे पहले रिलीफ कैंप में गए और वहाँ पर औरतों की बहुत बुरी हालत है, ख़ास तौर पे जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनके पास किसी तरह की कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, मेडिसिन भी नहीं है और खाने को सिवाय दाल चावल के कुछ नहीं है। इसके साथ साथ जो बच्चे हैं 0 से 6 वाले या थोड़ा टीनेजर, उनके पास भी कोई सप्लीमेंट फूड नहीं है। यहाँ तक कि जो सीनियर सिटीज़न हैं
उनको स्पेशल केयर की उनको भी ज़रूरत रहती है, उनके पास भी कोई ऐसा भोजन या ऐसी व्यवस्था नहीं है। सुबह शाम जो दाल चावल मिलता है वही उन सब के लिए है। तो एक इस तरह की सिचुएशन देखी। दूसरा वो कैंप देखे जहाँ पे बच्चे स्कूल गोइंग हैं या कॉलेज में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि उनके घर जले हैं, घर टूट गए हैं, तो वो कैंपों में रह रहे हैं। और इधर सरकार ने एग्ज़ाम अनाउंस कर दिए कॉलेज गोइंग ऑन वाले बच्चों के, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल के। तो जब इंटरनेट बंद है, उनकी किताबें जल गई हैं, तो किससे पढ़ेंगे और कैसे एग्ज़ाम देंगे? तो उनको सरकार को अभी या तो एग्ज़ाम नहीं लेने चाहिए थे, या उनको जब उनके रिज़ल्ट आउट हों तो उस वक्त उनको स्पेशल कुछ करना चाहिए, पास आउट करना चाहिए, स्पेशल नंबर्स देने चाहिए। इवन हम पहले लोग थे, ये मणिपुर ईस्ट के जो रिलीफ कैंप हैं, 3 रिलीफ कैंप हैं, मैं उनकी हालत बता रही हूँ। तो उन कैंप्स के अंदर कभी किसी सरकारी ऑफिसर ने या किसी पॉलिटिशियन ने कोई विज़िट नहीं किया है। उन्होंने कहा पहले लोग हैं जो यहाँ पे आए हैं। तो लोग कैसे डर में जी रहे हैं, तब भी एक दूसरे से नफ़रत नहीं कर रहे। सबसे बड़ी बात जो है, तब भी वो ये चाहते हैं कि मैतेई भी शांति चाहते हैं, कुकीज़ भी शांति चाहते हैं, लेकिन सरकार क्यों चुप है? ये सच में लोगों ने हमको कहा है, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। और कुछ नेबर्स किसी के मैतीज़ हैं तो वो उनसे फ़ोन पे टच में हैं, किसी के नेबर्स कुकीज़ हैं तो वो उनके फ़ोन से टच में एक दूसरे से पूछ रहे हैं। फिर वो लोग जो कैंप में रह रहे थे, वहीं से जब एक लड़का अपना बाहर कुछ सामान लेने के लिए गया, उस वक्त उसको गोली मार दी गई। तो कैंपों के बाहर या अंदर कोई सुरक्षा का सिस्टम नहीं है जो प्रोटेक्ट उनको करना चाहिए था। गवर्नमेंट से जो वो उम्मीद करते हैं कि उनको प्रोटेक्ट किया जाए, तो वैसा भी कुछ नहीं है। हम लोग चूरा चांदपुर जो कुकीज़ वैली है उधर गए हैं, तो वहाँ पर भी महिलाएं हैं बाबा, तो वो सब यही चाहती हैं अपने घरों को वापस लौटें। लेकिन घर तो बर्न हो गए, तोड़ दिए गए, जला दिए गए। तो उन स्थिति में सरकार की तरफ से 2 महीनों में कोई कंपनसेशन नहीं है, कोई ऐसे घर नहीं मिल। आप एक गांव में बनाओगे तो दूसरा गांव अगर वैलीज़ का, तो वहाँ पे भी बनाना होगा ना। आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते क्योंकि आप सरकार हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसा प्रयास नहीं है। पेंशन्स नहीं है लोगों को। लेकिन मैम ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि सरकार का तो जिम्मा बनता है कि लोगों की देखभाल करे। व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दिस? आपको क्या लगता है? देखिए, हम गोलीबारी के बीच में रहे हैं, गोलियां चल रही थी दोनों तरफ और हम बीच में वहाँ थे, और टीयर गैस थी, आग लगी हुई थी, बहुत सारी चीज़ें जलाई जा रही थी। हम ऐसी स्थिति में रहे हैं। तो एक चीफ मिनिस्टर सड़क के ऊपर बाहर लोगों के बीच में आता, तब अपना रेजिग्नेशन शो करता है। तो ये कोई रासलीला है क्या जो आप पब्लिकली इस तरह से कर रहे हैं? आपको रेजिग्नेशन देना है, लोग आपका रेजिग्नेशन मांग रहे हैं, आपको रिस्पॉन्सिबल मान रहे हैं इस सारे वायलेंस को लेके, तो आप गवर्नर को मेल कीजिए ना, सेंड कीजिए ना। और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो जानबूझ के आप इस तरह का माहौल क्रिएट करना चाहते हैं अपने पद पे बने रहने के लिए, तो ये बिल्कुल भी उचित नहीं है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। तो सरकार की तरफ से जिस तरह की मदद लोगों को पहुंचनी चाहिए, जिसकी दरकार उनको है, वो नहीं है। क्योंकि सब लोग हैंड टू माउथ हैं, किसी के पास कुछ नहीं है, उनके सारे डॉक्यूमेंट जल गए हैं। वो मैं उस महिला से जब हमारी टीम मिली है, जो जब उनका गांव जलाया जा रहा था तो वो जंगल की तरफ भागी है। वो पूरा 1 दिन और रात जंगल में रही है, और जब लगा कि अब थोड़ा माहौल शांत हुआ, बाहर आई है, तो असम राइफल ने उसको रेस्क्यू किया और कैंप तक पहुंचाया है। दोनों तरफ बहुत कैजुअल्टी हुई हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि जिनके प्रियजन खोए हैं या जो मारे गए हैं बोथ साइड, तो उनकी डेड बॉडीज़ को क्रीमेशन करने के लिए, उनका अंतिम संस्कार करने के लिए तो सबका हक है ना। तो सरकार क्यों 2 महीनों से उनकी बॉडीज़ को उनके हैंडओवर क्यों नहीं कर रही है? तो ये कुछ समझ नहीं आ रहा। तो सरकार का क्या एजेंडा है? 2 महीने तक कोई बॉडी मोर्चरी में रखी जाती है, क्यों उनके परिवार को नहीं दे रहे हैं?
तो ये कहीं ना कहीं समझा रहा कि उच्च स्तर की, उच्च कोटि की राजनीति चल रही है। They need lot of relief. Everything has burned down. Nothing is there for so many thousands of people, for the students, children, and all sections. So they need lot of help. So Is there a collection point or something where relief can be we are actually starting, NFIW is starting a relief, we are giving a call for relief materials, and our office in Kasturba Gandhi Marg 1002 and Selvavan will be a collecting point. And we have already spoken to the collectors of two districts where it is most affected, and they said that they will see to it that if you send the material, we will ensure that this will reach to the people, because many trucks were burned down on the road while taking it to the Churachandpur district and other Kuki areas. So they said this is our responsibility, we will do that. So that with that confidence we are giving a call for relief material.